Hello student. In today's lecture we will discuss about the substitution and transposition techniques. These are our department vision and missions, and these are our department POs. Learning outcomes. After completion of this lecture, student will be able to understand the concept of substitution and transposition techniques. Prerequisite is cryptography, जो हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. सो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक हमको यहाँ पे डिस्कस करना है. तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हम डिस्कस करेंगे सीजर साइफर एंड मॉडिफाइड सीजर साइफर, एंड ट्रांसपोजिशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक. सो देयर आर टू वेज बाय विच द प्लेन टेक्स्ट मैसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड वन इज ट्रांसपोजिशन. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टर्म्स पढ़ी, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सो इन सब टर्म्स का एक ही पर्पस था, टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज इनटू द साइफर टेक्स्ट सो दैट द मैसेज विल बी सिक्योरली सेंड थ्रू द नेटवर्क टू द रिसीवर. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस प्लेन टेक्स्ट मैसेज इनटू द साइफर टेक्स्ट मैसेज? So basically there are two techniques here. First one is substitution technique and second one is transposition technique. So now we will see the first one, substitution technique. So in substitution technique, letter of plain text can be replaced by the another letter or the number or symbols. तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बेसिकली वर्क कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट रहते हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाय द अनदर लेटर और द नंबर ऑफ द सिंबल के साथ में. ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हाउ एग्जैक्टली द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक वर्क्स. सो इन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक वी विल रिप्लेस द प्लेन टेक्स्ट with the another number, with the another alphabet, or with the another number, or with the another symbols. If the plain text is viewed as a sequence of bits, then the substitution involves replacing the plain text bit pattern with the cipher text bit pattern. So plain text अगर हमको दिख रहा है sequence of bit के पैटर्न में, so हम substitution टेक्निक क्या करती है, इन्वॉल्व करती है replacing the plain text bit pattern with the cipher text bit pattern के साथ में. Now there are number of different ways of substitution cipher. First, following are the different categories of substitution cipher techniques. First one is scissor cipher substitution technique, and second one is modified scissor cipher. तो substitution technique में दो techniques रहेगी, scissor cipher and modified scissor ciphers. Now we will see each one in detail with the help of some example. Scissor cipher. In cryptography, a scissor cipher is also known as the shift cipher. क्रिप्टोग्राफी में सीजर साइफर को क्या बोलते हैं हम? also known as the shift cipher. Why? Because we will replace the alphabet with the another alphabet or symbol or the number. Caesar code or the Caesar shift is one of the simplest and most widely known encryption technique. ये सबसे ज़्यादा simplest और ज़्यादा यूज होने वाली encryption technique होगी. Scissor cipher substitution technique is one that the letter in the plain text will be replaced by the other letters or by the numbers or the symbol. Scissor cipher में क्या होता है कि जो भी लेटर रहता है प्लेन टेक्स्ट का उसको हम रिप्लेस करते हैं विद द अनदर लेटर और द नंबर और द सिंबल के साथ में. Why? Because this is belongs to the substitution technique. और substitution technique में क्या हो रहा था कि हम लेटर्स को रिप्लेस करते विद द अनदर लेटर्स. The earliest use of substitution cipher is also the simplest one that is proposed by Julius Caesar called Caesar cipher. ये अभी अगर हम substitution cipher की बात करते तो is also simplest one that is proposed. इसको propose किसने किया था? Julius Caesar called Caesar cipher. अभी इस substitution technique को substitution technique सबसे पहले था, उसके बाद में अर्लीस्ट यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर इज ऑल्सो सिंपलेस्ट. दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज और कितने सिंपलेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं ये प्रपोज, ये बताया था किसने? जूलियस सीजर ने. दैट्स वाई हमने इस टेक्निक को नाम दिया सीजर साइफर. ओके, सो जूलियस सीजर इज अ पर्सन हु हैड गिवन हु हैड डिजाइन द सीजर साइफर. ओके, the Caesar cipher works with the replacing each letter with the letter standing 3 places further down the alphabet order.
सो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट कि सीजर साइफर में जो रिप्लेसिंग हो रहा है प्लेन टेक्स्ट का विद द साइफर टेक्स्ट के साथ में, दैट मीन्स वन लेटर विद द अनदर लेटर, तो वो किस तरीके से हो रहा है? सो बाय 3 places further, by 3 places further, that means in the alphabetical order A B C D. So ABC is the message and this is the plain text. So now I will replace this ABC, A with D, B with E and C with F. Okay, so this is the scissor cipher. For example, with a shift of 3, A would be replaced by D. जो भी मैंने बताया आपको, A will be replaced by D, B would become E and so on. C with F. This method is named after Julius Caesar, who used it to communicate with his generals. Okay. Now we will see one example. For reference, I will create one table of the alphabets from A to Z. There are 26 alphabets. I will given the number 1 to 26. Now this is the example. For instance, here a scissor cipher using a left rotation of 3 places. Left rotation of 3 places. The shift parameter here 3 is the use as the key. हमने यहाँ पे use को क्या किया हुआ है कि 3. जब एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट दिया रहेगा और की दिया रहेगा कि आपको की यूज करना है 3, और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेफ्ट रोटेशन. That means start from the A. Okay. So here the plain text is एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको. यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट क्या रहेगा? A B C D E F G up to M. So now A का यहाँ पे की हमारी 3 है. So A will be replaced with the D, B will be with the E, C with the F, D with the G, E with the H, F with the I, up to M with the P. Now this table will be continued in the next table. N with the Q, O with the R, Y with the B and Z with the C, X with the A, C. X जब आया तो फिर से कहाँ से शुरू हो गए हम? A से. Y जब आया तो फिर से हम कहाँ से शुरू हो गए? A के बाद में B और Z किसके साथ में? C. So this table indicate कि how exactly the ciphertext for the sequence of the alphabets from A to Z. Okay, this is the background of our scissor cipher. Now your question is like, when encrypting, a person looks up each letter of the message in the plain line and write down the corresponding letter in the cipher line. Deciphering is done in the reverse. Consider the plain text. Now this is your question. Consider the plain text is as meet me after the toga party. Then this is the your plain text. Now how you will convert this plain text into ciphertext? So you have this previous table. Okay. So now you have to create the 2 rows. First one is plain text and second one is ciphertext. In the plain text you have to write all the alphabets in the each block. So now you will see meet me after toga party. Okay, meet me after toga party. Okay, here one correction is here. Your plain text is meet me after the toga party, but I had written plain text in plain text meet me after the party. Okay, so you have to correct this mistake. You have to cross the word toga. Okay, again repeat कि प्लेन टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो प्लेन टेक्स्ट के टेबल में मैंने दिया हुआ है मीट मी आफ्टर द पार्टी. सो टोगा इज नॉट हियर, सो यू हैव टू क्रॉस द टोगा इन द प्लेन टेक्स्ट गिवन इन द एग्जाम्पल. ओके, नाउ सो इस करेक्शन के बाद में आपका प्लेन टेक्स्ट क्या होगा? मीट मी आफ्टर द पार्टी. सो यू हैव टू राइट दिस
plain text in the plain text row. Every letter should be separate. So मैंने यहाँ पे लिख दिया meet me after the party. Now मेरा जो plain text था अभी मुझे उसको कन्वर्ट करना है साइपर टेक्स्ट में. तो साइपर टेक्स्ट में सीजर साइफर क्या बोल रहा है कि you have to shift the parameter here. 3 is the key. So आप अगर देखोगे तो m के लिए क्या दिया हुआ है आपको p. देखिए प्रीवियस टेबल में प्लेन टेक्स्ट और साइपर टेक्स्ट में जो हमने अल्फाबेटिकल वाइज दिया था कि प्लेन टेक्स्ट क्या होगा और उस अल्फाबेट का साइपर टेक्स्ट क्या होगा. सो m का रिप्लेसमेंट क्या रहेगा p, e का रिप्लेसमेंट रहेगा h, e का रिप्लेसमेंट रहेगा h, t का w, m का p, अप टू लास्ट वन t का w, y का b. So this is the plain text of this is the ciphertext of the plain text meet me after the toga party. Now your output is ciphertext is equal to phhw. That means this indicate the meet. phww, this indicate the meet. ph indicate the me, that means meet me. dywhu, that means this indicate the after. dIWHU, this indicate the after. WKH indicate the. SWUWB indicate the party. So this is your ciphertext. So by considering this ciphertext, normal user is unable to understand this plain text that had been converted into the ciphertext. So Caesar cipher works like this pattern. Okay, कि फर्स्ट आपको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट को लिखना है. आफ्टर दैट उसका साइपर टेक्स्ट में क्या है, इसका की रहेगा 3. सो ऑन द 3 प्लेसेस आपको उस प्लेन टेक्स्ट के लेटर को रिप्लेस करना है विद द अनदर लेटर. सो इस तरीके से हमको साइपर टेक्स्ट मिल गया PHHW, PHDIWHU, WKH, SDUWB. Okay, so this is the Caesar cipher. The encryption can also be represented using the arithmetic by first transferring of the letter into the number according to the scheme. A equal to 0, B equal to 1, Z equal to 25. So, कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सीजर साइफर. दैट मीन्स हम A को रिप्लेस करेंगे 2, 3 के साथ में. वाई? बिकॉज हियर A इक्वल टू अगर हमने 0 लिखा है, B इक्वल टू 1 लिखा हुआ, तो डैश डैश Z इक्वल टू 25 अगर होगा तो Z को रिप्लेस में 25 से करूँगा, Y को रिप्लेस 24 से करूँगा, X को 23 से करूँगा. और इधर अगर मैं A की बात करूँ तो A रिप्लेस विद द 0, B रिप्लेस विद द 1, C रिप्लेस विद द 2, D रिप्लेस विद द 3 एंड अप टू द Z इक्वल टू 25. So in that way also you have to convert your plain text into the ciphertext by replacing the letter with the numbers also. Okay. So this is the example of Caesar cipher. Now अभी modified Caesar cipher क्या होगा? In this version an alphabet A can be replaced by the other alphabet in the English alphabet set, that is B to Z. So for each alphabet in the string we have the 25 possibilities of the replacement. We modified जैसा सीजर साइफर में क्या हो रहा था कि 3 प्लेसेस में ही वो रिप्लेस हो रहा था और हम लोग क्या कर रहे थे, तो उसका रिप्लेसमेंट हम विद द अनदर लेटर कर रहे थे या विद द अनदर सिंबल और विद द अनदर नंबर कर रहे थे. सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म था. अभी मॉडिफाइड सीजर साइफर में क्या हो गया कि हम A को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम B टू Z तक के, इसलिए हमारे पास में यहाँ पे 25 पॉसिबिलिटीज रहेंगी ऑफ द रिप्लेसमेंट. एन अटैक ऑन द साइफरटेक्स्ट मैसेज वेयर in the attackers attempt to use the possible permutation and combination known as the brute force attack, that is an attacker submitting a mini password with the hope of the eventually guessing correctly. So साइफरटेक्स्ट मैसेज के ऊपर में अटैक कैसे किस तरीके से होगा? सो दिस इज द मॉडिफाइड सीजर साइफर, जहाँ पे क्या होगा कि हम एक लेटर को रिप्लेस करने के लिए नंबर हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन लेंगे, 25 कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोजिशन टेक्निक. सो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया हमने, रिप्लेसमेंट किया. तो सब्स्टिट्यूशन में हमने रिप्लेसमेंट किया तो उसके 2 टेक्निक्स थी. फर्स्ट वन इज सीजर साइफर एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइड सीजर साइफर. तो सीजर साइफर में हमने 3 प्लेसेस के साथ में चेंज किया
और मॉडिफाइड में क्या हो सकता है कि हमारे पास में 25 पॉसिबिलिटीज रहेंगी फॉर शिफ्टिंग द प्लेन टेक्स्ट लेटर्स. ओके, so now the second technique is transposition technique. Transposition system are fundamentally different from the substitution technique. Substitution technique से transposition technique कुछ अलग है. In substitution technique system, plain text values are replaced with the other values. Plain text value किसके साथ में replace हो रही थी? With the other value in the substitution technique. But in transposition technique does not replace the alphabet from the plain text with the other, whereas it performs some permutation of the alphabets of the plain text. ट्रांसपोजिशन में हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं. ट्रांसपोजिशन में हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं. रिप्लेसमेंट कहाँ पे था हमारा? सब्स्टिट्यूशन में. हम ट्रांसपोजिशन में क्या कर रहे हैं कि कुछ परम्यूटेशन चला रहे हैं ऑन द अल्फाबेट्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट. जो भी हमारे प्लेन टेक्स्ट के अल्फाबेट्स होंगे उस अल्फाबेट्स के साथ में हम कुछ परम्यूटेशन चला रहे हैं और इस तरीके से हम उसको चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेन टेक्स्ट टू द सेपरेट टेक्स्ट. In transposition system, plain text value are rearranged without replacing the otherwise changing them. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट वैल्यू रहता है उसको रीअरेंज करते हैं और सेपरेट टेक्स्ट को जनरेट करते हुए उसको हम सेंड कर देते थे इन द नेटवर्क. Substitution technique focus on substituting a plain text alphabet with the separate text alphabet. सब्स्टिट्यूशन टेक्निक किस चीज के ऊपर में फोकस कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन के ऊपर में. किस चीज का सब्स्टिट्यूशन? प्लेन टेक्स्ट का विद द सेपरेट टेक्स्ट अल्फाबेट. दैट मींस इट बिलीव्स ऑन द सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द प्लेन टेक्स्ट विद द सेपरेट टेक्स्ट अल्फाबेट. That means transposition technique differ from the substitution technique in that way they do not simply replace one alphabet with another, they also perform the permutation over the plain text alphabet. इस तरीके से हमारी ट्रांसपोजिशन टेक्निक डिफर करती है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपली रिप्लेस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चला रहे कुछ परम्यूटेशन ओवर द प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट. जो भी प्लेन टेक्स्ट के अल्फाबेट रहेंगे उसके ऊपर में हम क्या चला रहे हैं? परम्यूटेशन. सो दिस इज द ट्रांसपोजिशन टेक्निक. नाउ वी विल सी. सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोजिशन टेक्निक. फर्स्ट वन इज रेफरेंस ट्रांसपोजिशन टेक्निक, सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक, सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक विद द मल्टीपल राउंड्स. So in our syllabus there are two transposition technique we have to learn, simple columnar and simple columnar with the multiple rounds. So we will see first one, simple columnar transposition. What exactly done in the simple columnar transposition? The message is written out in the rows of a fixed length. Fixed length के rows में हम message को लिखेंगे and then read it out again the column by column. रो वाइज लिखेंगे और कॉलम वाइज हम उसको क्या करेंगे? रीड करेंगे. एंड द कॉलम्स आर चूजन इन द सम स्क्रैम्बल्ड ऑर्डर. और जो कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको स्क्रैम्बल्ड ऑर्डर में रीड करेंगे. सो दिस इज आवर सेपरेट टेक्स्ट इन द सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन. बोथ द विड्थ ऑफ द रोज एंड द परम्यूटेशन ऑफ द कॉलम आर यूजुअली डिफाइंड बाय अ कीवर्ड. अभी यहाँ पे कीवर्ड क्या रहेगा? दैट मीन्स की क्या रहेगा कि विड्थ ऑफ द रोज क्या रहेगी और परम्यूटेशन क्या रहेगा, ये हमारी रहेगी यहाँ पे की. The simple columnar transposition technique simply arrange the plain text as a sequence of rows. अभी simple columnar transposition जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी plain text रहेगा उसको हम sequence of rows में लिख रहे of a rectangle. rectangle के रो में हम यहाँ पे plain text को लिख रहे that are read in the column randomly. rectangle के rows में हम उसको लिख के column wise उसको हम क्या कर रहे हैं? read कर रहे हैं. This is the simple columnar transposition technique. So now these are the step of simple columnar transposition technique. First क्या करना है आपको कि टेक्स्ट मैसेज को लिखना है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज को लिखना है आपको रो बाय रो इन अ रेक्टेंगल ऑफ प्रीडिफाइंड साइज. सेकंड क्या करना है आपको? रीड द मैसेज कॉलम बाय कॉलम. हाउएवर इट नीड नॉट बी इन द ऑर्डर ऑफ कॉलम 1 2 3. इट कैन बी एनी रैंडम ऑर्डर 2 3 1 1 3 3 2 1 also etc. दिस मैसेज डज ऑब्टेन इन द सेपरेट टेक्स्ट मैसेज. तो आप इस तरीके से अगर आप कॉलम को रैंडमली ऑर्डर करोगे तो ये होगा आपका सेपरेट टेक्स्ट. नाउ वी विल सी द वन एग्जांपल. द योर प्लेन टेक्स्ट इज कम होम टुमारो. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द प्लेन टेक्स्ट इन रो. सो यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द कॉलम. हाउ मेनी कॉलम यू हैव टू सिलेक्ट? सो दिस इज डिपेंड्स ऑन यू. ओके. So first for that we have to check how many letters in the plain text.
सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कम होम टुमारो, देयर आर टोटल 16 लेटर्स. ओके, सो यू कैन यूज द 4 rows and 4 columns. You can use second, that means what, कि अगर आप 4 कॉलम और 4 रोज यूज करते हो तो चारों कॉलम में, चारों रोज में, हर एक ब्लॉक में आपको 8 लेटर मिलेगा. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे 5 कॉलम्स एंड 3 रोज को यूज करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 15 लेटर्स ही पुट हो सकेंगे, एक लेटर के लिए ब्लॉक नहीं रहेगा. ओके, सो मेरे पास में पॉसिबिलिटी है कि मैं 4 कॉलम एंड 4 रोज यूज करूँ, और अगर सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं यूज करूँ 6 रोज एंड 3 कॉलम. सो आई एम सिलेक्टिंग द 6 रोज. सो आई हैव टू क्रिएट वन रेक्टेंगल C1, दैट मीन्स कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6. अगर 6 कॉलम है तो 3 रोज की जरूरत मुझे पड़ेगी. वाई? बिकॉज 6 इंटू 3 18, दैट मीन्स अवेलेबल साइज इज 18, बट वी हैव टू यूज इट ओनली 16. Okay, now you have to write this message in the row by row form. So मैंने यहाँ पे लिख दिया come home tomorrow, that means C in the C1, O into C2, M in C3, E in C4, H in C5, O in C6. that means home का HO हमने लिख लिया है. then M और E जो बचा हुआ वो हमने कहाँ पे लिखा? रो 2 में. That means row 2 C1 में M, row 2 C2 में E, and again continues for the tomorrow also. At last you will see there are 2 boxes, R3 C5 and R3 C6 are empty. Why? Because we don't require these 2 boxes. So in that way you have to write your plain text. Now the second step is now decide the order of the column, some random order. So मैंने यहाँ पे select किया random order 4 6 1 2 5 3. Then the read the text in the order of this column. So step 3, thus the result obtained could be, that means the hypertext is column 4. column 4 में क्या दिया हुआ है? EOW. So EOW. column 6 में क्या दिया हुआ है? OO. column 1 में दिया हुआ है CMR. column 2 में दिया हुआ है OER. कॉलम 5 में दिया हुआ है HM एंड कॉलम 3 में दिया हुआ है MTO. So this is the hypertext of your plain text, and your key is 4 6 1 2 5 3. Again repeat, your key is 4 6 1 2 5 3, and this is the your hypertext. Okay, so when the receiver receives this hypertext, so it receives the key also. So किस तरीके से ट्रांसपोजिशन टेक्निक का एल्गोरिदम काम करेगा? सो इस तरीके से वो एनक्रिप्ट करेगा, और डिक्रिप्शन में किस तरीके से? जस्ट इसका रिवर्स. जस्ट इसका रिवर्स कैसे होगा? तो सबसे पहले लिखेगा की. कितने डिजिट की है? 6 डिजिट, 6 नंबर से 4 6 1 2 5 3. दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 6 कॉलम. कितने कॉलम है? मैक्सिमम ऑफ 6 कॉलम. ओके, सो रिसीवर क्या करेगा? 6 कॉलम डिजाइन करेगा. ओके, एंड द साइपरटेक्स्ट की, वो साइपरटेक्स्ट के लेटर्स को कैलकुलेट करेगा. तो देयर आर टोटल 16 लेटर्स ऑफ साइपरटेक्स्ट. ओके, देयर आर टोटल 16 लेटर्स ऑफ साइपरटेक्स्ट. और अगर हमने यहाँ पे 6 कॉलम का टेबल अगर क्रिएट किया, सो 2 रो अगर रखे तो वहाँ पे 12 लेटर्स ही हम पुट कर सकते हैं, और 3 अगर रखे तो हम 18 लेटर्स को पुट कर सकते हैं, और हमारे साइपरटेक्स्ट के लेटर कितने? 16. दैट मीन्स 3 रोज आर सफिशिएंट. ये रिसीवर को पता चल गया. सो उसने किस तरीके से कॉलम को डिजाइन किया? ऑन द बेसिस ऑफ द की दैट हैड रिसीव्ड बाय द रिसीवर. ओके, नाउ अभी उस की को यूज करते हुए उसने कॉलम में एंट्री करना शुरू किया. सो यहाँ पे रिसीवर को एक चीज तो क्लियर होगी कि देयर आर टोटल 18 ब्लॉक्स आर अवेलेबल, बट द साइपरटेक्स्ट इज ओनली हैविंग द लेंथ ऑफ 16. सो यहाँ पे रिसीवर को एक चीज तो पता होगी कि लास्ट 2 जो ब्लॉक है वो एम्प्टी रहेंगे. ओके, अभी वो उसको पता लास्ट 2 ब्लॉक कौन से रहेंगे? C5 एंड C6.
सो जब भी 5 और 6 का नंबर जब आएगा तो वो सिर्फ साइपर टेक्स्ट से 2 ही लेटर्स को सिलेक्ट करेगा और पुट कर देगा टेबल में। सो देखो आप किस तरीके से होगा। अभी एज अ रिसीवर मैं सोच रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट द साइपर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि हाउ मेनी numbers in the key. So there are total 6 numbers, so I have to create as a receiver 6 columns. Now मैंने देखा साइपर टेक्स्ट क्या होगा, साइपर टेक्स्ट कितने लेंथ का है, तो ये होगा 16। दैट मीन्स व्हाट, मुझे यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे 3 रोज, तो उसमें से 2 एम्प्टी रहने वाले और वो 2 एम्प्टी जो रहेंगे वो रहेंगे सबसे लास्ट वाले। नाउ अभी मैंने की को देखते हुए पुट करना शुरू किया। सो 4 में कितने लेटर्स की ज़रूरत होगी, 3। सो मैंने लिख दिया वहाँ पे EOW, उसके बाद में 6। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे 2 जो है वो एम्प्टी रहने वाले, तो 6 में मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 लेटर्स को, दैट मीन्स OO। नेक्स्ट वन इज 1 में 3 लेटर्स CMR, 2 में 3 लेटर्स OER, 5 में अगेन 2 लेटर्स HM एंड 3 में अगेन MTO। सो इस तरीके से रिसीवर कन्वर्ट करेगा साइपर टेक्स्ट को इनटू द प्लेन टेक्स्ट। अभी ये हम मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कॉलमनर सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक एल्गोरिदम होगा ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा। ये हमने जो कन्वर्जन किया फ्रॉम साइपर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट ये हमने मैनुअली किया हुआ। ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। Like the reference technique, the simple columnar transposition technique is quite simple to break into. Okay, जैसा कि रेफरेंस होता है जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वैसे हमारा सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक इज क्वाइट सिंपल टू ब्रेक इनटू। मतलब हम सिंपल कॉलमनर में क्या कर रहे हैं, ब्रेक करते हैं मैसेजेस को। The simple columnar transposition techniques simply arrange the plain text as a sequence of rows of a rectangle that are read in the column randomly. That means हम क्या करते हैं, कॉलम में सेट करते हो, सॉरी रो में सेट करते हैं और कॉलम वाइज उसको रीड करते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक विद द मल्टीपल राउंड्स। तो जो हमने सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक में पढ़ा वही हम सेम थिंग को रिपीट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। सो वो होगा हमारा नेक्स्ट टेक्निक विद द मल्टीपल राउंड। मतलब जो प्रोसेस हमने सिंपल कॉलमनर में 1 टाइम प्रोसेस किया उसको हम नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस करेंगे। सो वो होगा विद द मल्टीपल राउंड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। टू इम्प्रूव द बेसिक सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक न्यू कॉम्प्लेक्सिटी आज इंट्रोड्यूस। अभी सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए हमने उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई, तो वो बन गया हमारा सिंपल कॉलमनर विद द मल्टीपल राउंड्स। The idea is to use the same basic procedure as use the simple columnar transposition technique, but do it more than once. आइडिया इसमें क्या रहेगी, जो आप सिंपल कॉलमनर में कर रहे हो वही आपको यहाँ पे करना है, बट इसमें क्या करना है, उसको एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट करना है। That add the considerably more complexity for the crypt analyst. So इसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी फॉर द क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस मतलब कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइपर टेक्स्ट। The basic algorithm of simple columnar transposition technique with the multiple rounds is as stated below. सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द प्लेन टेक्स्ट, जो हमारे सेम स्टेप रहेगी इन द रो बाय रो। रीड द मैसेज कॉलम बाय कॉलम, हाउएवर इट नीड नॉट बी इन द ऑर्डर 1 2 3, आपको उसको रैंडम ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। द मैसेज इज thus obtained in the ciphertext message. Repeat this step 1 2 3 as many times as desired. जो फर्स्ट 3 स्टेप रहेगी जो हमारे सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक की थी, उसी सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक की 3 स्टेप को आपको 1 टाइम परफॉर्म करना है, और जो साइपर टेक्स्ट आपको मिलेगा उसी साइपर टेक्स्ट के ऊपर में फर्स्ट टू थर्ड स्टेप आपको मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, तो वो हो जाएगा आपका सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक विद द मल्टीपल राउंड। Okay. The only addition in this technique to basic simple columnar transposition technique is the step 4. सिर्फ यहाँ पे एडिशन क्या हुआ है, मल्टीपल राउंड में स्टेप 4 को हमने ऐड किया हुआ है, जो क्या बोल रही है, repeat the step 1 2 3 as many times as desired, which result in the execution of the basic algorithm on more than one occasion.
इट मेक्स द साइपरटेक्स्ट फार मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द बेसिक सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इससे वजह से क्या होगा कि जो साइपरटेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो ज़्यादा सिक्योर क्रिएट होगा। वाई? बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग again the columnar transformation technique on the ciphertext multiple time. This is the one example of सेम एग्जाम्पल कम होम टुमारो। तो अगेन मैंने यहाँ पे 6 कॉलम को यूज़ किया, तो फाइनली मुझे साइपरटेक्स्ट मिला EOWOCMROERHMMTO। ओके, सो यहाँ पे हमारा साइपरटेक्स्ट मिल गया। दैट मीन्स स्टेप 1 टू स्टेप 3 इज द सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक। बट अभी मुझे मल्टीपल राउंड देखना है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप 4 में क्या था कि रिपीट स्टेप 1 2 3 अगेन। तो मैंने अगेन स्टेप 4 में परफॉर्म किया, बट इस टाइम मैंने क्या किया कि प्लेन टेक्स्ट में कंसीडर किया मेरे साइपर टेक्स्ट को जो मुझे फर्स्ट राउंड में पता चला। तो मेरा साइपर टेक्स्ट था EOWOCMROERHMMTO। So again I return this ciphertext in the same manner that I had been written in the first round, but in first round I had written the plain text, in the second round I had written the ciphertext who comes after the first round, and again repeat the same procedure, and after that in the step 6 I will receive the ciphertext OEOCHEMMORMORWT. दिस इज द साइपरटेक्स्ट। नाउ अगर मुझे ये फिर से करना है, फिर से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है, ज़्यादा सिक्योर अगर मैसेज को करना है, तो मैं फिर से सेम स्टेप को रिपीट करूँगा नंबर ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ साइपरटेक्स्ट दैट आई हैड रिसीव्ड इन द प्रीवियस राउंड। ओके, मतलब मैं नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता हूँ। सो स्टेप 7 में देखो, कंटिन्यू लाइक दिस इफ मोर नंबर ऑफ इटरेशन इज डिजायर, अदरवाइज स्टॉप। अगर आपको जरूरत है तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप स्टॉप हो जाओ। Ciphertext produced by the simple columnar transposition technique, which multiple round in which in is much more complex to crack as compared to the basic technique. So यहाँ पे मल्टीपल राउंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम हम परफॉर्म कर रहे हैं सेम प्रोसीजर को, तो इसके वजह से हमारा जो मैसेज है वो ज़्यादा सिक्योर हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा टू क्रैक by the attack. Okay, so this create the more complexity in the simple columnar with the multiple rounds. These are the some MSBD question. Describe the scissor cipher with the suitable example. Describe the modified scissor cipher. Describe simple columnar transmission technique with this example. Describe simple columnar transmission technique with the multiple round with suitable example. These are the basically 4 MSBD questions based on the today's lecture topic. And last we compare between the substitution cipher and the transposition cipher. This is again the most important question on the today's lecture topic. समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में सीजर साइफर, मॉडिफाइड सीजर साइफर, ट्रांसपोजिशन में हमने डिस्कस किया सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन, सिंपल कॉलमनार विद द मल्टीपल राउंड्स आल्सो. In the next lecture we will learn the steganography. Thank you.